किसी भी लद्दाख ट्रिप की आइटनरी में ऐसा मुश्किल ही है कि नुब्रा वैली का नाम ना आए। पिछले कुछ सालों में नुब्रा जाना जाता है कुछ सो कॉल्ड एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। टू बी ऑनेस्ट, मुझे ना ही किसी बेजुबान जानवर के ऊपर बैठने में इंटरेस्ट है और ना ही इस सीरीन जगह की शांति को इन लाउड एटीवी से भंग करने में। और सच बताऊं तो ये मीनिंगलेस एक्टिविटीज नुब्रा वैली को किसी तरह से भी डिफाइन नहीं करती। तो अगर इस बार आप नुब्रा की एक अलग पहचान देखने के लिए तैयार हैं तो चलते हैं फिर। Nubra Valley is around 120 kilometers from Leh and the drive takes at least 5 hours. One of the exciting parts of this journey is traveling through the falsely claimed highest motorable road, Khardungla Pass. Yes, you heard me right. It's not the highest motorable road. In fact, as per Devil on Wheels, which is actually one of the most popular informative websites on Himalayas, Khardungla is not even in the top 10. But the reality is quite amusing. Called me old school, but मुझे अभी भी ये इतनी भीड़ भाड़ में सेल्फी खिंचवाने का पॉइंट नहीं समझ में आता। हम तो यहाँ नहीं रुके, बट इतना कहूंगा कि प्लीज इंश्योर नॉट टू स्टे हियर फॉर मोर देन 15 मिनट्स, क्योंकि 17,500 फीट की ऊंचाई पे ऑक्सीजन बहुत कम होता है और AMS होने के चांसेस बहुत ज्यादा। The entire journey from Leh to Nubra is characterized with wild landscapes and a wide variety of colors. और मेरे लिए ये अनमार्क्ड अनप्लान्ड पिट स्टॉप्स इस जर्नी का मजा दुगना कर देते हैं। Nubra is quite unlike the other valleys I've been to. Formed by the river Shyok and its tributary Nubra or Siachen, the valley is a blend of vast landscapes and barren yet colorful vistas. There are two parts to the Nubra Valley as the road bifurcates from the village of Khalsar. एक रास्ता जाता है यहाँ के पॉपुलर गांव डिस्किट, हुंदर और तुर्तुक की तरफ और दूसरा जाता है सियाचन बेस कैंप की तरफ। इसी दूसरे रास्ते पे पड़ते हैं दो छोटे से गांव सुमुर और तेगर और अगले कुछ दिनों के लिए हमारा बेस कैंप द क्यागर। Situated on the quieter side of the Nubra Valley, the Kyagar is named after this small village that once used to be a pit stop on the Silk Route. यहाँ अंदर आते ही पहली चीज जिस पे ध्यान जाता है वो है यहाँ के panoramic views. This is by far the most spectacular views that I have witnessed in the last 1 week. लद्दाख की फ्रेजाइल इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए द प्रॉपर्टी ऑल्सो ट्राइज टू बी अ लो फुटप्रिंट्स एस्टैब्लिशमेंट और इसीलिए यहाँ के रूम्स बने हैं मड ब्रिक्स और मुल्तानी मिट्टी से। द मिनिमलिस्ट डिजाइन ऑफ द रूम्स इज एब्सोल्युटली सूदिंग टू द आईज एंड द माउंटेन व्यूज टच द सोल। The Kyagar is run by Rinchen Cologne and aims to target the experiential travelers. जब उनको मैंने अनट्रैवल के बारे में बताया तो she got really excited in helping me experience the raw and real side of the valley. Charasa is a remote historical village around 40 kilometers from Sumur. This once used to be the winter palace of the king of Ladakh, but now all that remains is a monastery and the ruins of the fort.
When was the last time you were here? I came here last year with a bunch of friends, and yeah, I mean it's a very special sort of an area because you don't normally see any tourists here. I mean, even in this village, you won't see a single, one of those Maggie stalls also, which you'll find anywhere else. But the people out here are very warm and welcome you into their own houses. So it's a very and if you see the fortifications, etc., there's so much history out here that it just gives you a sense of of time and place of where we are. So, इसको चरसा पैलेस बोलते हैं या चरसा फोर्ट? This is the Charasa fort. Charasa actually comes from the word chakrasa. Chaks is metal in Ladakhi. Okay. So this area was actually very rich in iron ore, and this area was actually mined for the iron ore, which was used throughout Ladakh. And so it has an active monastery. It has an active and monastery. then the ruins of this fort. Ruins of a fortress, which is supposed to be one of the largest in Ladakh. And so they say that in the 16th century, because we are very close to the Tarim Basin, which is right to the north of us, and we are part of the entire, we are connected to the Silk Route. So Babur's first cousin, Mirza Haider, it seems he had invaded Ladakh from here, and then they talk about using catapults for the first time in Ladakh. And the only two forts that since we don't have much of a written history, we only have oral history which is passed down. So they say that this could be the fort where they first used catapults, where obviously the local forces were defeated soundly because they'd never seen the use of war machinery before that. What elements of Ladakh, I know that your Ladakh Connect also was very on and off, but what elements of Ladakh of the erstwhile era do you remember? कि यार उस टाइम पे बचपन पे ऐसा हुआ करता था और अब ऐसा है. No, I mean, like, I grew up obviously not grew up so much, but the thing is I was in Leh earlier when I was a child. So I don't remember there being like the entire area, the whole Changspar road, it was just fields. And just, sort of stone walls like in the villages right now. So Leh looked like what Charasa looks like now. And it was a very small, sleepy town. Everybody had time to sort of, get together. Now, of course, it's just like, this invasion of like tourism has gotten everybody so busy that it's become like a very commercial sort of place. Like nobody has time for each other anymore. So that is something which is sad. But the good part is that it's only a 6-month phenomena. In the winters, Ladakhis sort of recoup and then they get back to their socializing. So I think that's a blessing. The fact that the roads actually don't allow much tourism in the winter. चरसा भले ही एक छोटा सा गांव हो, बट इसके लैंडस्केप्स और इसकी हिस्ट्री बहुत वास्ट है. Surrounded by mountains on one side and Nubra River on the other, this erstwhile fortified settlement might be lost somewhere in the history books, but what I saw and felt there will be etched in my memory forever. Back at the Kyagar, Rinchen arranged a small picnic not very far from the hotel. In fact, जब होटल के आसपास की सराउंडिंग्स ऐसी हों, तो हर कोना किसी पिकनिक स्पॉट से कम नहीं है. But what are the odds यार? हम इतनी टाइम से बात कर रहे थे और हमें बहुत बाद में पता चला actually that we belong to the same school. Yeah. So उसके बाद क्या? Did you work in the corporate setup or you directly moved here? I worked for 3 years. So of course, the first 2 years you have a campus placement, Right. and then you have 2 years of, your regular management trainee. And then after that, I worked for a year in Bombay with Standard Chartered, and then I came back. Ladakh called me back. To be honest, I can't complain. I mean, 360 degrees of views. Yeah, the views here are really great, no? Yeah. And I love what you have done with the property. So is it what जो ऊपर mud वाला हमें part दिखता है? Is it just coating or it's stone and mud? We've used actually, so obviously the bathroom areas we've used cement. Yeah, because you need a cemented area for the bathrooms. Apart from that, it's mud bricks and it's stone. But how exactly is this Nubra different from the usual Nubra?
see, I think we've been lucky in the sense that the people who come to the Sumur side, they're the better sort of breed of travelers, if I can actually call them that. Because Hundar actually is mainly just sort of, people go there for a night, stay there the night. They have to hit all the tourist checkpoints and then leave. But the people who come here from the 1.5 months experience that I've had, they're the ones who want to sort of indulge more in slow travel. Right. So you have people who want to just maybe even do nothing for a day, just read a book or just sit by the riverside, which is actually one of our best sellers. But right now, because of all this rain and because of the heat, the water level has risen so much that the riverbank is submerged. Evenings at the Kyagar are the best time to just sit and appreciate the magnificent creations of nature. The mighty mountains, the playful sky, and the comforting sound of the water flowing nearby. All of this is just mesmerizing. Nubra Valley is home to jaw-dropping landscapes, postcard villages, and it was one of the key places that lay along the ancient Silk Route. The remote villages of Kyagar and Sumur are like a dream come true for every nature lover. और आज इन्हीं गांवों को थोड़ा और करीब से जानने में मेरा साथ देने वाले हैं रिग्जिन वांगडू। रिग्जिन इस गांव के सरपंच हैं, यहाँ एक होटल चलाते हैं और मेरी ले की होस्ट सेजिर ने कहा था कि अगर क्यागर जा रहे हो तो बिना उनसे मिले मत आना। तो आपकी पैदाइश यहीं की? हाँ, क्यागर की है। एक्चुअली ये जो होटल है मेरे फादर ने वो किया था, बिल्ड किया था 93 में। ओके। और ये होटल जो है नुब्रा वैली में फर्स्ट होटल इन नुब्रा वैली था। रियली? ये पूरी नुब्रा वैली मतलब हर तरफ, चाहे हुंदर साइड हो? हुंदर तो काफी नया है, जो प्लेस टूरिस्ट के लिए खुला है। ये जो होटल है होल नुब्रा वैली में, जहाँ से आप खरदुंगा से क्रॉस करते हो नुब्रा वैली स्टार्ट हो जाता है। तो होल नुब्रा वैली में ये यरप्सो जो है फर्स्ट होटल था। नुब्रा वैली में देखने के लिए फॉर द टूरिस्ट बहुत कुछ है। तो अभी कुछ सालों में डोमेस्टिक टूरिस्ट का यहाँ पे आना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है उनको होता है उनको थोड़ा सा वो हमारे कल्चर के बारे में नहीं जानना चाहते, वो हमारे फूड के बारे में नहीं जानना चाहते, वो हमारे यहाँ पे देखने के लिए बहुत ओल्ड फोर्ट्स हैं, पैलेसेस हैं और मोनेस्ट्रीज हैं, काफ़ी हिस्ट्री है उनके बारे में। कुछ ऐसे टूरिस्ट भी आते हैं डोमेस्टिक में जो हमारे कल्चर को फॉलो करते हैं, जानना चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। तो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे एक तो हमारे गांव में ही समसंग मोनेस्ट्री है जो काफ़ी मशहूर है, वन ऑफ द बेस्ट मोनेस्ट्री इन होल लद्दाख, सेकंड थर्ड नंबर पे स्टैंड करता है जी। और यहाँ पे हमारे कल्चर में यहाँ पे जुम्स्कंग गोगमा है जो रॉयल पैलेस था जी, जो कि 2014-15 में फ्लड आया था यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा डिस्ट्रॉय हो गया था। उसके बारे में जो आप देख सकते हैं उधर, ये जो सामने हमें वो जो ऊपर से देख रहा है जी 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 जी, वो है जुम्स्कंग गोगमा। अच्छा। तो उनके फैमिली अभी यहाँ पे नीचे शिफ्ट हुए हैं और ये भी काफी पुराना। तो रॉयल फैमिली अभी भी यहाँ है? अच्छा। उनके डिसेंडेंट्स जो हैं वो अभी हैं यहाँ पे। okay. तो उनके भी यहाँ पे, इनका भी हाउस यहाँ पे है। तो उन्होंने एक किचन जो है वो उसमें कन्वर्ट किया है म्यूजियम में। अच्छा। तो लद्दाखी प्रॉपर किचन आपको देखने को मिलेगा जी। और जी। साथ में म्यूजियम जो मंगोलिया से जो ट्रैवल करते थे उनके यूटेंसिल्स, अच्छा, कैमल्स, हॉर्स के सैडल्स एंड वो काफ़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये सब बहुत पुराने हैं जी, और ये तो और भी पुराना है। ये जो सेंट्रल एशिया से वो लोग ट्रैवल करते थे जी, तो ऐसा यूटेंसिल लेके आते थे। अच्छा। वो पत्थर का भी होता था और लकड़ी का भी होता था। अच्छा। ऐसे ये सब जो है ना, ये मोस्टली अभी क्या है, ये पत्थर के ही है?
हाँ ये पत्थर एक टाइप का स्टोन होता है। अच्छा। वही उसी का है। जो छंग होते हैं जी। उसको फर्मेंटेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसको ओके। इसको छंग को जो रोस्टेड बार्ले को 4-5 महीने के लिए इसको फर्मेंटेशन के लिए रख देते हैं। तो इसमें क्या रोस्टेड बाले और पानी डाल के उसको फर्मेंट करने के लिए? दूसरा होता है लाइक पुल होता है, पुल जैसा एक मटेरियल होता है। अच्छा। वो डाल के इसको 4-5 महीने के लिए रखते हैं। ठीक है। फिर हम इसको फिल्टर इसमें करते हैं जी। तो ये खोल के फिर हम सर्व कराते हैं इसमें से। ओके ओके ओके। तो ये छंग है हमारा जी। जो रोस्टेड बार्ले से बनता है, जो कि हमारे लाइक बेसिकली ये हर घर में होता है। तो जो यहाँ पे जो मैन्स होते हैं जो फील्ड में काम करते हैं दिन में, और जब शाम को आते हैं तो लाइक उनके वाइफ्स छंग बना के उनको पहले थकान मिटाने के लिए हम छंग सर्व करते हैं। तो विंटर्स में हमारा एक लोसर होता है जो हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल। हाँ जी, लोसर जो बड़ा फेस्टिवल होता है। तो हम क्या करते हैं, ये रॉयल पैलेस है ना, रॉयल फैमिली का हाउस है जी। तो जितने भी गांव वाले हैं यहाँ के जी। तो एक दिन ऐसा होता है कि जो इनका जो रॉयल फैमिली है पूरे गांव को इनवाइट इसी रूम में करती है। अच्छा। और यहाँ पे पार्टी देती है। क्या बात। तो काफी बैठते हैं, यहाँ पे नाच गाना होता है, छंग सर्व होता है, छुरपे सर्व होता है। ये याक चीज का बनाता है, याक चीज। इसको चीज को ड्राई करके हम ये हमारे थुक्पा में जाता है और काफ़ी डिश में, लद्दाखी डिश में प्रॉपर भी जाता है। और ये है फॉर स्नैक्स, ये है योजा। ओके। ये वीट से बनता है, वीट और एप्रिकॉट के लाइक सीड से। एप्रिकॉट का सीड इसमें मिक्स होगा। तो उनको क्या ड्राई किया है, रोस्ट किया है, क्या किया है? इसको रोस्ट किया है। रोस्ट किया। इसी का हम आटा भी बनाते हैं। अच्छा। और इस आटे का हमने ये मरकुर होता है हमारा लद्दाखी बिस्किट। अच्छा। तो हम शुरू करें फिर? आप ट्राई कीजिए छंग हमारा। चलिए, 2 चीक। गांव देखने के बाद रिग्जिन और मैं एक ऐसी जगह के लिए निकल पड़े जो ना सिर्फ विजुअली अपीलिंग है बट उसके पीछे एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है। इनफैक्ट उस जगह की यहाँ पे इतनी मान्यता है कि रिग्जिन के होटल का नाम भी उसी पे रखा गया है। यरप्सो, ये लाइक मेरे फादर को हमारे जो समसलिंग गुम्पा के हेड लामा थे जी, ठिस्ट्रिंगबोचे जी, ये उन्होंने सजेस्ट किया था। क्योंकि इस लेक के बारे में थोड़ा बताऊं तो ये जो लेक है ये हम इसको होली लेक मानते हैं। अच्छा। और वंस इन ए ईयर एक ऐसा दिन होता है जो यहाँ पे लोग काफ़ी इकट्ठे होते हैं जी। और यहाँ पे लाइक पूजा भी होती है। अच्छा। जिसका मन बिल्कुल साफ हो तो उस आदमी को यहाँ पे वो मेडिटेशन करता है यहाँ पे इस लेक के पास, और उसको उस आदमी को यहाँ पे छोस्तेन और हमारे माने स्तूपास के रिफ्लेक्शन लाइक दिखता है। अब लेक में रिफ्लेक्शन, लेक में बट यहाँ कहीं मेरे को स्तूपास तो नहीं दिख रहे। नहीं, यहाँ पे है नहीं बिल्कुल, बट उनको लेक में फिर भी दिखता है। लाइक उनके जो हम वही मानते हैं बुद्धिज्म में, जो हमारा मानना है कि जिसका मन साफ होता है वो उसको रिफ्लेक्ट देख सकता है। टूरिज्म भी लाइक काफी चेंज हो गया लाइक 5-7 सालों में। जी। काफी पहले ऐसे डिसेंट टूरिस्ट आते थे जो
वही पहले भी मैंने आपको बताया था कि हमारे जो कल्चर है उसको एक्सप्लोर करते थे। आजकल के हमारे लाइक जो इंडियन टूरिस्ट आते हैं उनको वही उनके हिसाब से नुब्रा में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ये कार्टिंग, ये बाइक्स, उसकी वजह से हमारा ये जो नेचर है वो भी काफ़ी स्पॉइल हो रहा है। मुझे लगता है सैंड ड्यून्स पे भी तो बहुत Sand इम्पैक्ट dunes। पड़ता होगा। पहले सैंड ड्यून्स इतना अच्छा था, हुंदर सैंड ड्यून्स और ये जो टीमोड का सैंड ड्यून्स पूरे ड्यून्स थे, प्रॉपर ड्यून्स थे। अभी एटीवी चला चला के इन्होंने बिल्कुल सत्यानाश कर दिया, सरफेस फ्लैट हो गया। जो लद्दाख है हमारा वो सिर्फ ये गो कार्टिंग या जो रेत पे बाइक्स चलाना, ये जिप लाइन करना, उसके लिए नहीं है लद्दाख। लद्दाख अगर आप रियल लद्दाख एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो लाइक लोकल्स घर में जाइए, लाइक यहाँ पे फोर्ट्स हैं, कल्चर को एक्सप्लोर कीजिए। Ladakh is much more than what we have heard about it. Home to the most isolated and offbeat regions of the country, this place can show us some of the purest, untouched versions of beauty. बस आंखों में उत्सुकता और दिल में एक एक्सप्लोरर का जज्बा होना चाहिए।